Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a close test based on SSC CHSL previous year questions. CHSL previous year में पूछे गए एक close test की हम आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं उन्हें हमें fill करना है. ठीक है, तो एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा पैसेज है किस बारे में और फिर हम ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे. The choices we make in life determine who we are. One's life is dash marked by the exemplary choices one has made dash one's journey. The mega icon Ratan Tata has described his journey dash being a 7-year-old boy who played his dash the freedom struggle to being moved by the plight of a family on a two-wheeler which became the genesis of the world's most dash car, the Tata Nano. ठीक है, तो ये हमने पैसेज रीड किया. ये पैसेज बात कर रहा है चॉइसेस की. हम लाइफ में जो चॉइस लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है. तो ये पैसेज इस बारे में बात करता है. तो हम रीड कर लेते हैं. The choices we make in life determine who we are. मतलब जो हम choices लेते हैं लाइफ में, हम जिन चीज़ों को चुनते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो तय करता है, डिटरमाइन करता है, मतलब तय करता है कि who we are, कि हम क्या बनते हैं लाइफ में, हम कहाँ पहुँचते हैं. One's life is dash marked. एक इंसान की जिंदगी डैश मार्क होती है. By the exemplary choices one has made. एक इंसान की जिंदगी मार्क होती है, उससे जानी जाती है by the exemplary choices. exemplary मतलब जो अच्छी choices, good, ideal choices, जिनका दूसरों को एग्जाम्पल दिया जा सके. exemplary वो होता है जो choices अच्छी हो, तारीफ के काबिल हो, जिसका दूसरे को एग्जाम्पल दे सकते हैं. So by the exemplary choices one has made dash one's journey. ठीक है, blank देखिए. one's life is dash marked. Select the most appropriate option to fill blank 1. Never marked, often marked, rarely marked, seldom marked. क्या आंसर आएगा ब्लैंक 1 का. ठीक है, अब सोचो कि क्या आंसर होगा इसका. One's life is dash marked by the exemplary choices one has made dash one's journey. कि अपनी जीवन यात्रा में, अपनी जर्नी में जो वो exemplary choices, जो अच्छी choices, जो अच्छे डिसीजन लेते हैं, one has made dash one's journey. Select the most appropriate option to fill blank 2. Along one's journey, upon one's journey, into one's journey, toward one journey. The mega icon Ratan Tata ji has described his journey dash being a 7-year-old boy who played his dash the freedom struggle. तो रतन टाटा जी को डिस्क्राइब करता है, उनकी जर्नी को डिस्क्राइब किया है बीइंग अ 7-year-old boy, एक 7 साल के बच्चे से, who played his dash freedom struggle, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में डैश किया, to being moved by the plight of a family on a two-wheeler. मतलब एक 7-year-old बॉय से जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में डैश किया, से उस तक वो पहुंचे moved by the plight of a family on a two-wheeler. कि वो मूव हो गए, मतलब टच हो गए थे, उनको छू गई ये चीज जब उन्होंने फ्लाइट देखी फैमिली की जो टू व्हीलर पे जा रही थी. तो उसका जब उन्होंने परेशानी देखी, उनका ट्रबल, उनका डिफिकल्टी देखी, तो उससे वो उनको टच कर गई, उनको मूव कर दी. Which became the genesis, जो कि genesis बना. genesis मतलब origin, स्रोत of the world's most dash car, the Tata Nano. Which became the genesis मतलब जो origin बना, जो स्रोत बना of the world's most dash car, the Tata Nano. ठीक है, एक बार हम दूसरे ब्लैंक्स देख लेते हैं, हमने डिस्कस नहीं किए. The mega icon Ratan Tata has described his journey dash being a 7-year-old boy who played his. So select the most appropriate option to fill blank 3. For, from, though, above. From being a 7-year-old boy, for being a 7-year-old boy, though being a 7-year-old boy, या फिर above being a 7-year-old boy. क्या आंसर आएगा इसमें. और फोर्थ में being a 7-year-old boy who played his dash the freedom struggle. Apart from,
पार्ट इन, पार्ट ऑफ, पार्ट विद। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव्ड बाय द फ्लाइट ऑफ अ फैमिली on a two-wheeler which became the genesis of the world's most dash car, the Tata Nano. Economize, economist, economical, economic. ठीक है, जब उन्होंने एक फ्लाइट देखा, एक फैमिली को परेशान होते हुए देखा टू व्हीलर पे, तो उन्होंने एक टाटा नैनो बना दी थी उस टाइम पे। तो वो ओरिजिन बन गए, उनको फ्लाइट को जब रतन टाटा जी ने देखा तो वो ओरिजिन बन गई, स्रोत बन गई टाटा नैनो। तो ये पैसेज कहना चाह रहा है। तो आपको बताना है प्लान्स का क्या आंसर होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हू वी आर। जो हम चॉइस लेते हैं लाइफ में, जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो तय करते हैं कि हम कौन है। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड, नेवर मार्क्ड, ऑफन मार्क्ड, रेयरली मार्क्ड या सेल्डम मार्क्ड। नेवर का मतलब हुआ कभी भी नहीं। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड, आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड डैश वंस जर्नी। एक इंसान की जिंदगी डैश मार्क की जाती है, ठीक है, बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस। एग्जाम्पलरी मतलब हुआ अच्छी गुड, जिनका एग्जाम्पल दूसरों को दिया जा सके। बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड डैश वंस जर्नी। तो जब हम कह रहे हैं ये पैसेज कि एक इंसान की लाइफ मार्क होती है, पहचानी जाती है उनके चॉइसेस के बेस पे, तो क्या ये सही होगा? वंस लाइफ इज नेवर मार्क्ड बाय द चॉइसेस वन हैज मेड, जब हम कह रहे हैं कि वो मार्क की जाती है उनके चॉइसेस से, उनके डिसीजन से, चॉइसेस की ही ये पैसेज बात कर रहा है, तो नेवर मार्क तो आंसर नहीं होगा, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। रेयरली, रेयरली का मतलब ये होता है बहुत कम, लेकिन ये पैसेज तो बात चॉइसेस की ही कर रहा है, तो रेयरली भी नहीं हो जाएगा, वो भी नेगेटिव सेंस देगा। सेल्डम का मतलब भी होता है रेयरली, बहुत कम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑफन। वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब हुआ अक्सर। वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड। तो जैसे चॉइसेस लेता है, जैसे डिसीजन लेता है, उससे ही उसकी लाइफ की पहचान होती है। ठीक है, एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड डैश वंस जर्नी, along one's journey, upon one's journey, into one's journey, toward one's journey. along मतलब हुआ साथ साथ, अपनी लाइफ की जर्नी के साथ साथ जो वो चॉइस लेता है। वॉक along द रोड होता है कि रोड के साथ साथ चलना, तो along मतलब हुआ साथ साथ। अपॉन जैसे कुछ ऊपर की तरफ आता है तो उसे हम कहते हैं अपॉन। इनटू मतलब अंदर की तरफ, बाहर से अंदर मूवमेंट के लिए इनटू का यूज करते हैं। और टुवर्ड का मतलब होता है किसी डायरेक्शन, जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन को बताने के लिए टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। सो वन हैज मेड डैश वन जर्नी, क्या आएगा? अलॉन्ग वन जर्नी, अपनी जर्नी के साथ साथ जो वो चॉइसेस लेते हैं। अपॉन वन जर्नी, इनटू वन जर्नी या टुवर्ड्स वन जर्नी। देखो, लाइफ की जर्नी के साथ साथ जो लोग चॉइसेस लेते हैं वही तो उनकी लाइफ को डिटरमाइन करेगा, तो आंसर हो जाएगा अलोंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, अलोंग। एग्जाम्पलरी मीन्स वेरी गुड, आइडियल, आदर्श। Ratan Tata, the mega icon Ratan Tata, has described his journey dash being a 7-year-old boy। ठीक है, तो रतन टाटा जी की जर्नी डिस्क्राइब की गई है डैश बीइंग अ 7-year-old boy, एक 7 साल के बच्चे से। So for being a 7-year-old boy, from being a 7-year-old boy, though being a 7-year-old boy, और above being a 7-year-old boy। for मतलब लिए, किसी चीज के लिए, किसी पर्पस के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। दो का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, हालांकि। और above का मतलब ऊपर हुआ। So Ratan Tata has described his journey from being a 7-year-old boy, मतलब एक 7 साल के बच्चे से लेकर, who played his role his dash the freedom struggle। तो आंसर फ्रॉम हो जाएगा, played his dash the freedom struggle। अब उसने फ्रीडम स्ट्रगल में डैश किया। पार्ट फ्रॉम, पार्ट इन, पार्ट ऑफ, पार्ट विद। who played his part from the freedom struggle, who played his part in the freedom struggle, part of the freedom struggle या part with the freedom struggle। क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट इन।
तो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। पार्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना। तो आंसर हो जाएगा पार्ट इन, हु प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो आज़ादी का संघर्ष हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, उसमें अपना पार्ट लिया, हिस्सा लिया। क्या पार्ट इन का मतलब होता है बीइंग इन्वॉल्व और कंट्रीब्यूट इन समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। पार्ट विथ मीन्स टू गिव समथिंग अप, पार्ट विथ का मतलब होता है अबंडन, किसी चीज को छोड़ देना। पार्ट फ्रॉम मीन्स टू सेपरेट, पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी से अलग होना। और पार्ट ऑफ का मतलब होता है पार्शियली, टू पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा है तो पार्शियली। ठीक है। पार्ट विथ का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, टू गिव समथिंग अप। और पार्ट फ्रॉम का मतलब सेपरेट होना होता है किसी से। पार्ट ऑफ का मतलब पार्शियली, और पार्ट इन का मतलब है किसी चीज में हिस्सा लेना, इन्वॉल्व होना। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, पार्ट इन। ठीक है। To being moved by the plight of a family on a two-wheeler, which became the genesis, जो कि origin बना, आधार बना, स्रोत बना, of the world's most dash car, the Tata Nano। जब इन्होंने फैमिली को परेशान होते हुए देखा है टू व्हीलर पे, तो उन्होंने टाटा नैनो बनाने का सोचा। तो ये जेनेसिस बन गया, ओरिजिन बन गया वर्ल्ड्स डैश कार द टाटा नैनो। इकोनोमाइज, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक। ठीक है, ये आंसर होगा। जब रतन टाटा जी ने टाटा नैनो बनाई तो काफी सस्ती, चीप बनाया था उसे बाकी कार्स के कंपेरिजन में, ताकि उसको लोग अफोर्ड कर सके। तो क्या आंसर होगा? इकोनॉमाइज, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? इकोनॉमिस्ट होता है जो इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, वन हू स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमाइज तो वर्ब है, इकोनॉमाइज। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप, इनएक्सपेंसिव। और इकोनॉमिक, तो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल, वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल कार। इकोनॉमिकल मतलब वो चीप, इनएक्सपेंसिव कार। वैसे भी यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत है जो कार को डिफाइन कर पाए। इकोनॉमाइज तो वर्ब है, तो ये आंसर नहीं होगा। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ता है, तो हम तो यहाँ कार की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक, तो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक तो नाउन हो गया, और वो भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल मीन्स इनएक्सपेंसिव, चीप। इकोनॉमाइज का मतलब होता है सेव मनी, पैसा बचाना। एंड इकोनॉमिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ता है। So I hope you like it and understood this passage. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you. See you soon.